When I take mains mocks, it demotivates me, demoralizes me, frustrates me, it makes me cry, it almost kills me. रुला देते हैं, मार देते हैं, फ्रस्ट्रेट करते हैं. होता है, बहुत लोग के साथ होता है. Probably you are one of them. It happens with so many people, majority of the people. Mains mocks देके बहुत ही ख़राब फीलिंग आती है. It's a very bad feeling. It's a feeling as if you do not know anything. It's a feeling as if you've not studied anything. It's as if you have not worked hard, as if you're not going to make it. You're good for nothing. You can never succeed. It is like that. So many people do not take mains mock tests precisely because of this reason. जितना आता था उतना भी भूल जाएंगे, ऐसा ख़राब हो जाएगा. नहीं होता है. I can understand that feeling. It's bad. I've seen DI and reasoning sections of the main mock tests. These are the two that generally trouble people. GK और English उतना परेशान फिर भी नहीं करता. It's okay, kind of okay. But these two sections are the ones that trouble people to a great extent. होता है, ये वाली फीलिंग आती है. अब इसका तरीका क्या है? What do you have to do? One is that you can leave them, छोड़ दो, मत करो. Many people do it like that, and so many people claim to have succeeded without taking any mock tests. करा होगा, बिल्कुल करा होगा, झूठ नहीं बोल रहे हैं, करा होगा. But not everything works for everybody. Fine. So probably even if these people who claim to have cleared the test, fine, without taking any mains mock tests, have done it, it doesn't mean that was the best strategy. Probably if they can a few mock tests, उनका स्कोर और अच्छा आता. हो नहीं सकता था, हो सकता था बिल्कुल. So that should not be the logic. तो CR में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई. But तरीका क्या है इसका? मतलब what do we do? You have to take a few mock tests. One. अब मतलब you will say कि सर इसमें ना बड़ा प्रॉब्लम है because मेरे को डिमोटिवेशन होता है. Fine. So it's like आज मैच स्टार्ट हुआ है. So इंडियन साउथ अफ्रीका इन प्लेइंग सेंचुरियन. अच्छी पिच मानी जाती है, अच्छे से मतलब बॉलर्स के लिए अच्छी मानी जाती है. इट्स नॉट अ वेरी हाई स्कोरिंग ग्राउंड, राइट. अब ये वैसे ही है, आप ऐसे समझ लो इस चीज़ को ना कि व्हाट वुड यू रादर हैव, इंडिया स्कोरिंग 500 इन द फर्स्ट इनिंग्स इन द मैच एंड लूजिंग द मैच, और स्कोरिंग अ 350 इन द फर्स्ट इनिंग्स इन द मैच एंड स्टिल गोइंग ऑन टू विन द मैच. क्या चाहोगे? 500 बनाए हार जाए या 350 बनाए जीत जाए? इट इज़ लाइक दैट. कैसे रेलेवेंट है? ऐसे रेलेवेंट है कि से यू गेट अ 40 आउट ऑफ 16 क्वांट बट द पेपर इज ईजी and the cutoffs shoot up, fine, you're out of the race. Is that good? Or you score a 15 or a 17 or a 18, 22, 12, whatever, out of 60 and still you make it because the paper was tough. क्या scenario ज़्यादा अच्छा है? You score a 130 out of 200, going out, not shortlisted for the interview, or scoring a 65 out of 200 and still making it. बताओ क्या ज़्यादा अच्छा है? Obviously the latter case, बाद वाला. क्यों? क्योंकि मार्क्स मैटर नहीं करने वाले. Would it be there in your certificates? कितने मार्क्स आए थे इसमें? नहीं, कहीं नहीं होगा, कुछ नहीं होगा. व्हाट वुड बी देयर कि मैं SBI भी हूँ, जस्ट दैट, SBI में काम करता हूँ. सो दीज मार्क्स डू नॉट मैटर. इट इज़ अ कंपेरेटिव एग्जाम. व्हाट मैटर्स इज हाउ डू यू डू विज विद द कॉम्पिटिशन. कॉम्पिटिशन की तुलना में आपने कैसा किया है, दैट इज़ द ओनली थिंग दैट्स गोइंग टू मैटर. द प्रॉब्लम इज दैट व्हेन यू हैव वर्क टू सच एन एक्सटेंट, आपने इतनी मेहनत की है, फाइन, यू पुट इन सो मेनी आवर्स, सॉल्ट अरिथमेटिक एंड DI एंड पजल्स एंड व्हाट नॉट, एंड स्टिल you struggle to do even one set, it's a bad feeling. I know, I understand. So there are two solutions to this. One is that if you do not panic, can hold your nerve and look at the questions carefully, a little carefully, you will definitely find some questions too in the paper. I have done mains mock analysis on this channel, देख लो एक बार. अभी क्वेश्चन भी किया था मैंने DI का, आप देखो, आप विल रियलाइज कुछ ना कुछ करने के लिए होता है. द प्रॉब्लम इज दैट व्हेन यू लुक एट दिस टेस्ट इन टोटलिटी एंड फाइंड इट वेरी टफ, यू डू नॉट डू इवन दोज थिंग्स दैट यू कुड हैव डन. आपको आता था, कर सकते थे, नहीं किया, वो मत करो. जो भी मार्क्स आएंगे वो सफिशिएंट होंगे. इट्स लाइक यू बैटिंग ऑन अ टफ पिच अगेंस्ट गुड बॉलर्स, अगेंस्ट अ क्वालिटी बॉलिंग अटैक. व्हाट वुड यू से? मैं तो हमेशा 100 में आता हूँ, आज भी मार के आऊँगा. नहीं, ट्राई कर लो, नहीं लगेगा. इवन अ 50 वुड बी गुड इनफ, और अ 70 और अ 30. Depends on the pitch, depends on the conditions. It is like that. Why do you think that you would get a similar pitch or a similar set of bowlers all the time? It's not like that. So here, why do you think you'll get a similar set of questions, predictable set of questions, predictable difficulty level all the time? No. मुश्किल है, मुश्किल सही. हो सकता है एग्जाम वाले दिन आसान आ जाए, हो सकता है बहुत मुश्किल आ जाए. What would you do, or what do you have to do? You have to perform according to the difficulty level of the paper. Treat the paper on its merit. The way you treat the bowlers on their merit when you are playing cricket. नहीं, वैसा नहीं है, वैसा ही है ना. तो परेशान होने का क्या है? और उसे अच्छा करना है, वो उतना मुश्किल नहीं होता. कोई भी पेपर देखो. द प्रॉब्लम इज दैट व्हेन वी हैव वर्कड सो हार्ड, देन यू नो नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि मैं इसमें सिर्फ 10 मार्क्स लेकर आया 60 में से. माइट बी वेरी टफ. क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा यही हुआ दैट वॉट एवर 10, 15, 20 यू गॉट इट बिकॉज यू हैव वर्कड सो हार्ड ऑन इट. आस्क दोज हु हैवंट, दे विल गेट अ 0 और अ 2 और अ 3. तो बेकार नहीं जा रहा है. Probably
You getting a 40 or a 35 or a 45 out of 60 in a section would have given you a better feeling. But फर्क नहीं पड़ता. It would not have helped you score over the competition. Even they would have scored more. So in a competitive exam, not scoring according to your liking is okay, acceptable. It's perfectly fine as long as you're scoring more than a competition. I was analyzing a paper a couple of days back. So at a score of 22, 23 in reasoning, I think it was reasoning, people crossed a 99 percentile. Was it a bad score? No, it's a wonderful score. Why do you look at it like 22 out of 60? Look at it as 99, 99.5, 99.4. It looks wonderful. People were at around 13, 14, a percentile of 90. Acceptable. Right? छोड़ दो, वैसे देखना पेपर्स को छोड़ दो, the way you used to look at them in graduation or in school. No, I just have to perform to my potential. One, I have to try and score better than others. This is it. Period. Nothing else matters. Yes, it's a bad feeling, but I am ready to accept that bad feeling every time if it's a tough paper. मेरे को सिर्फ अपने पोटेंशियल तक परफॉर्म करना है और बाकी कुछ सोचना ही नहीं है. कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है. I'll score a 200 in the first innings, still win the match because the pitch is so difficult that my opposition would not score a 120. सोच सकते हैं ऐसा? थोड़ा सा अडेप्ट करना है. It would be fine. Not taking the mock test is not a solution. आज रो लो. एग्जाम वाले दिन रोना है क्या? सोच के बताओ. एग्जाम वाले दिन यू टेक इट फॉर द फर्स्ट टाइम, यू फाइंड इट टफ, इट कैन बी टफ. मॉक्स ज़्यादा टफ होते हैं बट एग्जाम भी आसान नहीं होता है अभी, और ज़्यादा मुश्किल भी हो सकता है. यू टेक इट फॉर द फर्स्ट टाइम अ टफ टेस्ट लाइक दैट एंड यू गॉन. वाई? बिकॉज यू डोंट नो द पेपर. आपने देखा ही नहीं है कभी. अभी थोड़ा सा रो कर अगर आदत पड़ सकती है उसको मैनेज करने की, यू विल कीप क्राइंग, कीप सेइंग थैंक्स टू द पीपल कि कैसा मुश्किल पेपर बनाया है. बट अल्टीमेटली यू विल गेट यूज टू इट. थोड़ी कंडीशनिंग होगी ना. सो आई एम यूज टू अ पेपर लाइक दिस. मुश्किल आएगा तो आई कैन स्टिल मैनेज अ 15, 20, 25 वॉट एवर. नहीं आएंगे 50, कोई बात नहीं. फाइन. आदत है ना. वहाँ पहली बार देखोगे तो क्या होगा सोचो. सो व्हेन यू फॉर द फर्स्ट टाइम टुक अ टफ मॉक टेस्ट, याद करो क्या हुआ था. हाथ पैर भूल गए थे. कुड नॉट रिमेंबर एनीथिंग. जो पढ़ा था वो भी भूल गए थे. नहीं, तो ये नहीं होगा अब. कैसे नहीं होगा? बिकॉज यू हैव कंडीशनड योरसेल्फ अकॉर्डिंगली. नाउ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर इट. कैसे हुआ? मॉक टेस्ट की वजह से हुआ ना, एक्सपोजर की वजह से हुआ ना. ये यूटिलिटी होती है. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप वुड बी आई विल गो बैक टू द टेस्ट एंड फाइंड आउट व्हाई डिड आई जस्ट गेट 12. इतना मुश्किल था क्या? यू लुक एट इट फॉर वन मोर टाइम आराम से. राइज नहीं यार, आई मेड सम मिस्टेक्स. पेपर वॉज अनडाउटेडली टफ, बहुत मुश्किल था, बट इतना नहीं था दैट आई कुड जस्ट स्कोर अ 12. आई कुड हैव गॉट अ 20. आई नीड टू गेट अ 20 नेक्स्ट टाइम इन अ पेपर लाइक दिस. जस्ट दैट. समझ में आई बात क्या कह रहा हूँ मैं? सिर्फ वो 20 ले आओ, कंपटीशन से बहुत आगे निकलने के लिए काफ़ी होगा. कंपटीशन नहीं है, कोई मार्क्स नहीं देखने वाला है. आपके फादर आगे नहीं बोलेंगे कि आप 20 में से 60 लेकर आए हो, बिकॉज आप तो मेरिट लिस्ट में आने वाले हो उसके बाद में. बात समझ रहे हो? तो इसके बारे में परेशान होना, चिंता करना छोड़ दो. इट डजेंट मैटर. मज़ा आने लगता है कई बार इन डिस्कशंस में दैट अरे वाह ऑलिव बोर्ड कितना मुश्किल देता है, अरे प्रैक्टिस मॉक भी मुश्किल दे रहे हैं, सब मुश्किल दे रहे हैं इस बार. नो, गॉसिप में सबको मज़ा आता है, ह्यूमंस हैं. वो मत करो यार. मज़े लो जब सब लोग बात कर रहे हैं. शुड एंजॉय इट कि हाँ बहुत मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है. बट जब मैं घर आऊँगा वापस पढ़ने के लिए तो व्हाट इज़ द फोकस? फोकस इज ट्राइंग टू फाइंड आउट इस मुश्किल टेस्ट में से क्या निकाला जा सकता है. व्हाट कैन आई एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ इट फॉर माई सेल्फ, फॉर मी टू डू बेटर इन द एग्जाम. समझ रहे हो बात को? बस ये. तो वो मजाक वाली बात को सीरियसली नहीं लेना है. ये गाली देनी स्टार्ट कर दी, वो भी ऐसा दे रहा है, पीएम ऐसा दे रहा है, ये वैसा दे रहा है, वो देने दो यार, कुछ फर्क नहीं पड़ता. आई ट्रीट द पेपर ऑन इट्स मेरिट. जैसा आएगा अकॉर्डिंगली परफॉर्म कर दूंगा बस, एंड फिर रिजल्ट का वेट करूंगा. विनर्स कंप्लेन नहीं करते. उनको सिंपैथी नहीं चाहिए होती. आप समझ रहे हो? जब आप ये चीज़ें करते हो, दिल से एग्ज़ाम देने के बाद में बहुत मुश्किल था, व्हाट्सएप अपने ग्रुप पे एक पोस्ट डाला कि बहुत मुश्किल था, आई गॉट अ 45. हु एल्स आर देयर विद मी एट 45? व्हाट आर यू लुकिंग फॉर यार? सजेशंस? नो, यू लुकिंग फॉर सिंपैथी. सजेशंस तो बहुत दिन से ले रहे हो ना, सब कुछ पता है आपको, आपको एग्जीक्यूट करना बाकी है. यू लुकिंग फॉर सिंपैथी. व्हाट डू यू वांट? सिंपैथी. यू वांट सक्सेस. विनर्स को सिंपैथी नहीं चाहिए होती, सक्सेस चाहिए होती है. आपको विनर बनना है, आपको अडैप्ट करना है. यू नीड टू अडैप्ट. यू डू नॉट वांट सिंपैथी, यू नीड टू अडैप्ट. अडैप्ट किसके हिसाब से? पेपर का डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से. उतना मुश्किल नहीं है, हो जाएगा. विनर्स अडैप्ट. विनर्स डू नॉट लुक फॉर सिंपैथी एंड देन दे विन. दे एस इट डिस्पाइट द ऑड्स. बी दैट विनर.